So we have seen that मैंने आपको ये नहीं लिखवाया था, मुझे याद है अच्छे से, that we have discussed that the various forms of graphs, different types of graphs. Okay, so we comes to the point that v is equals to k. Okay, this is constant. We have written this one. Yes, sir. Okay, and now we can write this one, that we can write pv is equals to, if this is constant, means if you are changing the value of p, then accordingly the v value will automatically change. Okay, means if you are increasing the pressure, then the volume will automatically decreases. So if you are increasing this term, this term will automatically decreases, and such that their constant, the product will remain equal. For example, if you are having this 10, pressure is 10 and volume is 2, and the product is 20. So if you increase this one, if you increase this to 20, then it will automatically change to 1. Okay, and if you increase this volume, let's suppose you've done this to 4, then this pressure will automatically get reduced and will still be, the product will be 20. So since this is constant, so we can write here that p, for if we are changing the pressure, initial pressure is v1 and then v2, and then we are changing the pressure to p2 and v2, so their product will be same. So we can write here is that p1 upon p2 is equals to, yes, we have to write here p1 v2 upon v1. Got it? Yes, sir. There are so many other numericals that we need to face on this one. Okay, now moving to the next is the Charles law. So what is Charles law? Charles law, let's move. So what okay, that is the Charles law. Charles law. Okay, Charles law. So we know that in the Boyle's law we studied the PV relationship. So what does Charles law, which type of relationship does Charles law gives us? Do you have any idea? So we have these four terms: P, V, N, and T. In the previous we were constant. We did the constant, these two terms. Okay, and in the gas laws, in the Gay-Lussac's law, this is the PT relationship. Okay, now what could be the Charles laws, or we can consider that which type of relationship this Charles law is going to have? Volume and temperature, sir. Volume and temperature. So keeping the pressure constant. Okay, keeping the pressure constant, we can consider that कि अगर हमारे पास प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशनशिप में हम लोग इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और P और N को एक साथ कर देते हैं. Okay, so we can consider that if these two are considered as constant, so we can say that and you know, in the previous class I have taught you that कि अगर number of moles constant होते हैं, तो it means the amount of gas is constant, because number of moles is actually WB upon any given mass of the gas upon molecular mass, and this is, since this is also a constant, तो अगर number of moles को change करना होगा तो यही चीज change होगी. So if we are not increasing the volume of the gas, increasing the mass of the gas, ना ही तो मास इंक्रीज कर रहे हैं, ना तो हम लोग उसमें से निकाल रहे हैं गैस को, ना ही हम उसके अंदर बढ़ा रहे हैं. तो if we are keeping the mass of the constant, or we are considering this Charles law for a fixed mass of a gas, okay, so we can say that for the fixed mass of a gas के लिए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, okay, and at constant pressure, we are not changing the pressure. So what you can see that the volume will be directly proportional to the temperature, and must be proportional. Tell me first, when we increase the temperature, will the volume increases or decreases? Sir, directly proportional. Yeah, we can simply say that. So we can say that the volume of the gas, is directly proportional to the Temperature. of the gas or the container, okay, of the gas, temperature of the gas. Okay, so we can write here that V is directly proportional to temperature. So we can write here V is equals to KT.
where k is constant. Okay, got Yes. it? So if I plot the graph of v, if I plot the graph of v, okay, in liter, and here temperature in degrees Celsius, so you can compare that v is equals to kt, kt. We can compare this equation by v is equals to m into x plus c, where c is 0. So since the intercept is 0, this will graph will be going to start from the origin. Yes, sir. इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा. Yes, sir. लेकिन ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर को जो है वो सेल्सियस में लिया है. तो यू हैव टू कीप इन माइंड हियर दैट द टेम्परेचर शुड बी टेकन इन केल्विन, क्योंकि हम लोग को Okay, sir. पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन. सो Okay, sir. हियर जब द वैल्यू 273 होगी तब ये ग्राफ यहाँ पर स्टार्ट होगा. सो अगर हम लोग को इसमें सेल्सियस भी बनाना है, सो हम लोगों ने कहीं पर यहाँ पर अगर हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो वी विल फाइंड दैट कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन. ओके, Yes, sir. सो यहाँ पर हमारे पास कहीं ऐसा ग्राफ आएगा, यहाँ से कुछ करके ऐसे ग्राफ आएगा इस कंडीशन में. सो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पर. ओके, सो Okay, sir. okay, so we will say that this graph will be equal, or we can say that will be a straight line only if the temperature is taken in Kelvin. Kelvin. Okay, so you have to keep in mind here that the volume should be in liter and temperature should be in Kelvin. अगर ये ml में लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके प्रोपोर्शनेट ही ये इंक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर जो है हमारे पास केल्विन होना चाहिए तभी ये 0 में जाएगा. ओके, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग. अच्छा, अभी मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ. अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, लेट्स सपोज इफ आई एम डूइंग दिस वन, this is T1, this is T2, and this one is T3. So would you think that which sorry, I have not taken P1, P2, and P3. So do you think that which one is going to have the higher pressure? P3 is higher or P1 is higher? P3, sir. P3 is higher. Okay, let's check. If we consider this one, that if we take the temperature as constant, हम लोगों ने यहाँ पे temperature constant ले लिया है, और if you have taken the temperature as constant बेटा, so एक constant temperature पर आप मुझे बताइए कि constant temperature है आपका, आप temperature को increase नहीं कर सकते, आपका temperature constant है. ठीक है? Yes, sir. And if the pressure is increased, अगर pressure आप इस पर increase करेंगे, so ये बताइए कि अगर आप इस पर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, ऊपर से प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की बात चल रही है यहाँ पर बाहर से, तो आपने गैस पर प्रेशर लगाया, तो बताइए उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? Can you increase the pressure? Will the volume increase or decrease? Decrease, sir. So you can simply say that P1 is greater than P2 is greater than P3. Okay. Okay, sir. P1 is greater than P2 is greater than P3 because more the pressure, lesser will be the volume. यहाँ पर आप देखेंगे जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा. ओके, Okay. so now moving to this one, if we multiply this above equation by log, so this is the first equation. Okay, and multiplying the first equation by log, we'll find that log v is equals to log k bracket t. So what you can write here is log v is equals to log k plus log t. Okay, Yes, sir. log v equals to log k plus log t. Then what you can, यहाँ पर आप क्या समझेंगे बताएं मुझे फटाफट से, कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ ऐसे, और if I am comparing this equation y is equals to mx plus c, और x is our log and here it's positive intercept. So मैं यहाँ पर ले लेता हूँ slope of the line is, so मैं यहाँ पर ले लेता हूँ y is equals to log v, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ log t. So बेटा टेल मी कि इसका ग्राफ किस तरह से आपको देखने को मिलेगा? Will it be a straight line? Will it be a straight line? I'm not sure, sir. हाँ बेटा, ये why? Because y is equals to mx plus c अगर की इक्वेशन में अगर हम लोगों ने कोई भी एक ग्राफ को, मतलब कोई भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, और हम लोगों ने जो
y है हमारा, उसको हम लोग y एक्सिस पर लिया है, और जो हमारा x है उसको हम लोगों ने इस पर लिया है, x एक्सिस पर लिया है, log t we have taken on the x axis, then it will be the graph will be a straight line. अब स्ट्रेट लाइन जो होता है, एक तो स्टार्ट होता है ओरिजिन से ऐसे, एक ग्राफ स्टार्ट हो सकता है यहाँ से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो होगा, ठीक है, लेकिन इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, कभी तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जिस ग्राफ में c की वैल्यू 0 होती है वो ग्राफ स्टार्ट होता है ओरिजिन से, लेकिन इसमें c की वैल्यू 0 नहीं, दैट इज लॉग के, ठीक है। Yes, अब sir. अब हमारे पास m क्या होता है, x को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, m की जगह पर हमारे पास क्या है, m इज +1, m हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू +1, और उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, जिसकी वैल्यू होती है टेन थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा, ओके। और पॉजिटिव स्लोप हमारे पास दो तरह के स्लोप होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव स्लोप, दिस वन इज इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ द स्लोप एंड द पॉजिटिव साइन इज इंडिकेटिंग कि स्लोप इस तरह से होगा, और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 होती है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं स्लोप नेगेटिव होगा, ओके, दिस इज द नेगेटिव स्लोप, ओके, गॉट इट। तो नेगेटिव स्लोप में हम लोगों ने देखा था कि बॉयस लॉ में स्लोप हमारे पास नेगेटिव था, लॉग v वर्सेस लॉग p वर्सेस लॉग v का, ओके। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा विद सम इंटरसेप्ट, उसका कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा, ओके। यहाँ पर हम लेंगे दिस इज द इंटरसेप्ट एंड दिस द वैल्यू ऑफ लॉग k, इस लॉग k की वैल्यू है, ओके। और इसमें जो स्लोप की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू है वो हमारे पास +1 है, and +1 is equals to tan theta, so we can write here that tan theta is equals to 1, so we can write here that tan theta is equals to tan 45 and theta is equals to 45 degree, okay। so अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल सॉरी x एक्सिस के पैरेलल y के along यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ, तो that theta would be equal to theta is equals to 45 degree, इसमें आएगा, got it, समझ Yes, आया sir. बेटा, पक्का, प्लीज कॉपी दिस वन, अगर कुछ भी ऊपर से जा रहा है तो प्लीज मुझे बता देना, Okay, sir. मैं समझा दूंगा, ओके, प्लीज कॉपी दिस वन। Sir, can you show the upper parts? व्हाई नॉट, डन, No, sir. ओके ओके।
Sir, can you scroll down, please? Okay, Can okay. you? Done. डन बेटा? Yes. ओके ओके। सो अभी हम लोग आगे मूव करते हैं, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो एक और ग्राफ है हमारे पास जिसको हम लोग बोलेंगे कि moving further, we have a graph like we are having this one. Okay, so we have KT. Okay, और we have this graph अभी हमारे पास था, that was the V is equals to KT. Okay, V is equals to KT. So we can write here that V is equals to KT. So we can write K is equals to V by T. Okay, so if I plot the graph of V by T, और यहाँ पर हम लोग T और V कुछ भी ले सकते हैं जो भी हमारा दिल चाहे, तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताइए मुझे। What should be the graph of this equation? Straight line, sir. Yes, it would be a straight line along the y-axis ना, along Yes. the x-axis, sorry. So क्यों होगा बेटा? क्योंकि आपको पता है कि ये अपने आप एडजस्ट करेगा, बिकॉज k by t का रेशियो जो है वो फिक्स होने वाला है। तो अगर मैंने v को चेंज, यहाँ पर मैंने t ले लिया सपोज कीजिए, तो मैं टेम्परेचर को चेंज करता जा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम अपने आप चेंज होता जाएगा, और ये जो v by t का ओवरऑल आएगा दैट वुड बी विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कांस्टेंट। ओके ओके, ये हमारे पास ग्राफ आएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि ये मैंने एक फिक्स टेम्परेचर पर किया, सॉरी एक फिक्स प्रेशर पर किया, वो प्रेशर हमारे पास P1 है। फिर मैंने दूसरे प्रेशर पर किया तो मेरे को V by T का रेशियो जो है वो भी कांस्टेंट था, लेकिन इस बार यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिली। और तीसरी बार मैंने P3 पर किया तो मेरे को P3 पर मेरे को ये वैल्यूज मिली। सो आप मुझे अरेंज करके बताइए कि कौन सा वैल्यू के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग क्या होगा। मतलब अगर मैं जानूं तो कि P3 is greater than P2 is greater than P1, or we can say that P1 is greater than P2 is greater than P3. Which one do you think is correct? Sir, the second one, P1 is greater than P. P1 is greater than P2 is greater than P3. अच्छा, ऐसा क्यों सोचा आपने बेटा? ऐसा क्यों सोचा, मुझे बताइए रीजन। Because sir, last graph में हाँ, सो हम लोग क्या करते हैं ना बेटा, हम लोग हमेशा कांस्टेंट रख के देखते हैं। हम लोग क्या करके देखते हैं? हमेशा कांस्टेंट। constant. सपोज कीजिए मैंने एक टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, लेट सपोज यहाँ पर टेम्परेचर कुछ भी हमारा फिक्स है, तो मैंने जो डिवाइडिंग वैल्यू है उसको मैंने फिक्स कर दिया ना। जो भी मेरे पास वैल्यू है, सपोज पर मैंने 20 को फिक्स किया, 20 अपॉन x, 20 अपॉन y एंड 20 अपॉन z। ये मेरे पास P1 पर है, ये मेरे पास P2 पर है, ये मेरे पास P3 पर है। तो ये पता है कि मोर दी वैल्यू ऑफ, ये मेरे पास फिक्स है। सो सिंपल सी बात है, जितना मेरे पास ज्यादा वॉल्यूम होगा अब इस वक्त, जितना मेरा बड़ा न्यूमरेटर होगा, ओवरऑल मेरी वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। मोर द वॉल्यूम मोर विल बी द वैल्यू, मेरी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। यानी V by T की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, V by T की उसके बाद ये तो खुद भी दिख रहा है ग्राफ के अंदर। सो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, विल द वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो विल द प्रेशर विल द वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बेटा, बताइए। Decrease. क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, मैंने बाहर से प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? Decrease, sir. डिक्रीज करेगा। ओके, सो मैं मुझे पता है कि सबसे कम वॉल्यूम यहाँ पर होगा, क्योंकि V by T की मैंने इफ आई कांस्टेंट दिस टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, नीचे वाली मेरी वैल्यूज फिक्स है,
तो ऊपर वाला न्यूमरेटर जितना छोटा होगा उतनी ही मेरी वी बाई टी की वैल्यू छोटी होगी ओवरऑल। जैसे मैंने सपोज करो एक्स की वैल्यू समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि 5 है, 5/20। ऊपर मेरे पास y की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 10/20 और ये मेरे पास है दैट इज 20/20। सपोज समझाने के लिए मैंने ऐसे रखा है। तो मेरा जितना जितना ये मेरी ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, कब आएगी, क्योंकि मैंने टी को, मैंने डिनोमिनेटर को सबको फिक्स कर रखा है और मेरा न्यूमरेटर वेरिएबल है। तो मेरा न्यूमरेटर वेरिएबल है तो मेरी ओवरऑल वैल्यू जितना छोटा बड़ा मेरा न्यूमरेटर होगा उतनी मेरी बड़ी वैल्यू होगी। यानी मेरी वी बाई टी की वैल्यू ओवरऑल जब बड़ी होगी जब मेरा वॉल्यूम बड़ा होगा। तो मेरा वॉल्यूम बड़ा कब होगा, जब मेरा प्रेशर सबसे कम होगा। तो इसका मतलब है कि मेरा P3 सबसे कम है, उसके बाद P2, मतलब P3 मेरा सबसे कम है, उसके बाद P2 है, उसके बाद वी कैन से दैट P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। ओके, गॉट इट बेटा, समझ Yes. आया? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? No, sir. ओके, सो इसको भी एक बार ग्राफ को बना लें, फिर फटाफट से हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Okay, sir. Done, sir. ओके, सो अभी हमारे पास एक चार्ल्स के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट चार्ल्स ने, जब चार्ल्स एंड गे वर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन द हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून को क्योंकि हम लोग टेम्परेचराइज करते हैं, तो टेम्परेचराइज करने पर उसके अंदर कुछ गैसेस का एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से वो फूलता है, बड़ा होता है। तो उसमें उसने क्या कहा, उसने एक्सपेरिमेंट में देखा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, okay, according to Charles law, on every 1 degree rise, 1 degree सेल्सियस और केल्विन में राइज करे किसी भी, और फॉल, ठीक है, 1 degree rise or fall in temperature, the volume of the gas अगर राइज करेगा तो बताओ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इफ यू आर राइजिंग द टेम्परेचर, विल द वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? On increasing the temperature, the volume of the gas increases, na? So we can write here the volume of the gas increases, or if for the fall we have to write or decreases to 1/2733 times of its original volume. इसका क्या मतलब हो? इसने कहा कि अगर आप किसी एक गैस का वॉल्यूम 1 डिग्री राइज करते हो या 1 डिग्री गिराते हो, यानी कम करते हो, ठीक है, तो जब भी आप 1 डिग्री राइज करते हो या 1 डिग्री कम करते हो, उसके अकॉर्डिंगली 1/273 टाइम्स जो भी उसका वॉल्यूम होगा वो उसका इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि मैंने वॉल्यूम मान लिया गैस का किसी एक टेम्परेचर पर, वो मैंने मान लिया V0 इनिशियल वॉल्यूम है। तो अगर मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया, अच्छा ये टेम्परेचर का राइज करना कहाँ से माना जाएगा? हमारा टेम्परेचर का राइज करना माना जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। ओके, गॉट इट? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन माना जाता है। सो अगर मैं बात कर रहा हूं कि हम लोगों ने एक स्केल माना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई एक गैस आपने ले ली, V0, यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया उसका वॉल्यूम जो है वो V0 है एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना माना है? 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने उसका V0 माना है, और इसको आप 273 केल्विन भी मान सकते हैं। और उसके बाद आपने सपोज कीजिए कि उसका टेम्परेचर जो है वो कितना 1 डिग्री बढ़ा दिया, तो उसका V0 तो टेम्परेचर होगा ही होगा, प्लस V0 का अगर आपने 1 डिग्री बढ़ाया है
सो 1 डिग्री बढ़ाया तो 1/273 फ्रैक्शन जो होगा उसको इसमें आप और ऐड कर दीजिए। अगर आपने 2 डिग्री बढ़ाया तो आप इसमें 2 कर दीजिए, आपने 3 डिग्री बढ़ाया 0 से तो आप 3 लिख दीजिए। सपोज कीजिए आपको 25 डिग्री पर कैलकुलेट करना है तो 0 से 25 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट करना है, मतलब आपने 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो आप 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिए। या फिर अगर आपने घटाया, सपोज कीजिए आपने -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, 0 से -25 पर आ गए तो फिर आप यहाँ पर -25 लिख दीजिए, या फिर आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस कर दीजिए, जो भी आपने इंक्रीज किया तो यहाँ पर प्लस, और वही टेम्परेचर को अगर आपने डिक्रीज किया तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए। ओके, गॉट इट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास होगा यहाँ पर, दिस इज द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर increases और decreases with sign, ठीक है, मतलब जो भी साइन होगा उसके हिसाब से, अगर -25 किया तो -25 करोगे तो उसकी वजह से ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी और फिर हम लोग उसको माइनस कर देंगे। ओके, सो अगर मैं बोलता हूं बेटा आपने किसी एक गैस को 0 डिग्री सेल्सियस से -273 केल्विन पर ले गए, तो उस कंडीशन पे आप मुझे बताइए कि उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा। -2 आपने 0 डिग्री सेल्सियस से आपने -273 डिग्री सेल्सियस और मैं बोल सकता हूँ 0 केल्विन पर ले गए आप। सो आप का बताइए कि कितना आपका वॉल्यूम होगा। सो आप यहाँ पर -273 रखेंगे क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर आपने 0 से -273 डिग्री सेल्सियस पर ले गए, तो आप यहाँ पर -273 रखेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी जरा मुझे बताएं। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ टी एज -273 देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ योर वी नॉट। So this is not the V naught, यहाँ पर V final आएगा, this is the V final, V at temperature T। बताइए क्या वैल्यू आएगी बेटा। इट इज वेरी सिंपल। 273 सर। कितना कितना आएगा बेटा। दैट वुड बी 0। वाई 0 नहीं होगा, देखो यहाँ पर आपने V नॉट लिखा और आपने प्लस किया V नॉट इंटू -273/273, तो आप इसको कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 और -1 की वैल्यू V नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट माइनस ऑफ V नॉट एंड देन माइनस ऑफ V नॉट एंड देन विल गेट कंसिडर, तो हम लोग यहाँ पर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं, एक अजम्पशन लिखते हैं कि हम मानते हैं कि एट 0 डिग्री केल्विन, ओके, एट 0 डिग्री केल्विन, 0 एट 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस, we assume that the volume of the gas will become, समझ में आया, बताइए बेटा। गॉट इट, समझ आया Yes बेटा sir. ये टर्म आपको। सो आप Yes sir. कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज कीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको इफ आई एम सेइंग कि आपको कोई एक गैस है वो 0 डिग्री केल्विन पर उसका वॉल्यूम, सपोज कीजिए आपको एक्स कुछ भी आपको गिवन है, तो 0 केल्विन पर अगर आपको कुछ भी गिवन है, एक मिनट बेटा मैं टेक्स्ट कर देता हूँ कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये मैं, दिस इज द चार्ल्स लॉ। ओके ओके, सो उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली बता देंगे कि कितना चेंज आया। अगर माइनस में गया तो आप उसके हिसाब से चेंज करके बता देंगे कि हमेशा अगर हमारे पास, और ये किस पर हो रहा है, ये एक कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, ये भी याद रखना, क्योंकि बॉयल्स जो चार्ल्स लॉ है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। ओके, तो हम यहाँ पर बात करते हैं दिस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, नाउ वी should I move to the next law? Yes sir. Okay, so let's move to the next law, that is the Gay-Lussac's law. So Sir, अगर should I write that? हम Should I take a note of that, sir? yes, you have not written, so please note it down.
Then so. ओके 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 ओके। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है इज द गेल-लुसाक्स लॉ। ओके, गेल-लुसाक्स लॉ। सो गेल-लुसाक्स लॉ की अगर हम बात करें तो गेल-लुसाक्स लॉ के अंदर हमारे पास फिर से वही टर्म है पी वी एन इंटू टी। तो इस बार हम लोग जो है पी और टी की रिलेशनशिप है, हम लोग ले सकते हैं पी एंड टी रिलेशनशिप है, ठीक है। और जब पी और टी को हम लोगों ने ले लिया तो फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ मोल्स और किसको कांस्टेंट रखेंगे, वी को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को। सो हम लोग बोलेंगे एट फॉर अ कांस्टेंट मास for a given mass of a gas, for a fixed mass of a gas at constant volume बताइए अब आगे क्या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम नहीं चेंज करना। तो आप मुझे बताइए टेम्परेचर बढ़ाने में प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। Very good. So we can write here that pressure is directly proportional to its temperature. Its temperature. Okay. So अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि P is directly proportional to temperature, तो we can write here P is equals to KT. Okay. So again, अच्छा पिछले वाले लॉ के अंदर हम लोग देख सकते थे यहाँ पर कि हम लोग का एक रिलेशनशिप आना था, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि V1/T1 is equals to V2/T2. ओके, ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में याद रखिएगा, V1/T1 is equals to V2/T2। ये आपको पिछले वाले लॉ के अकॉर्डिंग आना था। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो वी कैन अगेन मेक द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशंस, जिसमें हम लोग अगर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं पी और टी को, सो फिर से वही है कि हमारे पास प्रेशर है, ओके, और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर है, एंड टेम्परेचर शुड बी केप्ट इन केल्विन, हमारे पास केल्विन में होगा, ओके। और क्योंकि ये y इक्वल्स टू mx से मिलती है, उसका इंटरसेप्ट 0 है, तो दिस ग्राफ विल बी गोइंग टू हैव दिस लाइक स्ट्रेट लाइन। और इसमें मैं अगर तीन अलग अलग वॉल्यूम पर बनाता हूँ V1, V2 एंड V3, तो बताइए अरेंज कीजिए फटाफट से कैसा हमारा ग्राफ होगा। मींस V1 is greater than V2 is greater than V3 और V3 is greater than V2 is greater than V1। टेल मी बेटा। Sir, V3 is greater than V2 than V1. V3 is greater than V2 is greater than V1। Okay, let's check। अगर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, सो बताइए प्रेशर बढ़ाने पर क्या वॉल्यूम बढ़ेगा? Yes, sir. प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, No, sir. No, sir. तो फिर प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होगा ना? Yes, sir. तो मतलब है कि यहाँ पर कम प्रेशर है तो यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना? यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब है V3 is smaller, or we can say that V1 is greater than V2 is greater than V3। बेटा ये चीज ध्यान में रखना हमेशा कि आप बस एक चीज को कांस्टेंट कर दीजिए, उसके बाद आप किसी भी तरह से इसको पता कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ कांस्टेंटिंग दी वाई एक्स एक्सिस पर जो भी है उसको कांस्टेंट करने की जगह पर आप किसी इसको कांस्टेंट कर दीजिए। आप ऐसे कांस्टेंट कर लीजिए, तीनों यहाँ पर कांस्टेंट हो चुके हैं, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप देख लीजिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा? तो यहाँ पर आपका V3 वॉल्यूम है, यहाँ पर आपका V2 वॉल्यूम है और यहाँ पर आपका V1 वॉल्यूम है। सो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। अगर प्रेशर फिक्स है तो दिस मीन्स दैट कि अगर आपने इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं किया तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होगा, सॉरी टेम्परेचर होगा, यहाँ पर कम टेम्परेचर होगा और यहाँ पर उससे कम टेम्परेचर होगा। तो यानी V1
सबसे ज्यादा है क्योंकि वो हायर टेम्परेचर पर है. So V1 is greater than V2 is greater than V3. तो आपकी मर्जी, आप चाहे x एक्सिस को कांस्टेंट करें, आप चाहे y एक्सिस को कांस्टेंट करें. It depends on you, but the result will be same. समझ आया? समझ आया बेटा? Yes, sir. ओके ओके. So let's move further. Moving further, हम लोग देखते हैं आगे. ओके चलिए. सो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं. इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा. अगर मैं दोनों तरफ लॉग की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, फिर से बताओ फटाफट से. P is equals to KT is equals to P is equals to KT. So I can take log multiplying log with both. We can write log P is equals to log K into T. So you can write here log K plus log T and this is log P. So अब आप एक और ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ग्राफ बताइए. log P को मैं कहाँ रखूँ बताइए, x एक्सिस पर रखूँ कि y एक्सिस पर. Tell me बेटा. Should I keep this one on x axis or on y axis? Y axis, sir. Yes, because y is equals to mx plus c. Okay, and if we are putting this on the y axis, log p, and this whole is x, this is log t, log t. So this will this graph start with the origin or not? No, sir. No, because it has some intercept. Okay, so will the graph will be like this or like this? Like this. Like this, sir. Yes, because it has positive intercept. Here we have positive 1 and the slope of the line is 1. Here m is equals to positive 1. So positive means positive slope and 1 means that tan theta is equals to 1. So we can say that this angle will be of 45 degrees. Got it? Yes, sir. Got it? Please note it down and we shall be moving further. इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. Sir, I have already written down, sir. Okay, okay, very good. So let's move further. So हमारे पास तीनों लॉज जो है ये हमारे पास हो चुके हैं और तीनों लॉज के बाद हम लोग को एक रिजल्टेंट मिल चुका है. और एक अगर मैं इसका लास्ट एक और बना देता हूँ. सो लास्ट एक और ग्राफ है जो कि हमारे पास है बेटा. लास्ट ग्राफ एक और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जब चल ही रहा है तो. Here we have the last graph that is the from this law कि अगर मैं यहाँ पर we know that P is equals to हमारे पास है P by T is equals to K. So we can write here if I'm taking P by T graph and यहाँ पे मैंने P और T कुछ भी रखा तो इसका ग्राफ ऐसे होगा कि नहीं होगा, because it is constant. Yes, sir. Okay, so if I'm writing this one and this one, so if I'm writing here V1, V2 and V3, so हम मुझे बताइए कौन सा वाला ज्यादा होगा. Done? V1, sir. V1 is greater than V2 is greater than V3. बेटा ट्राई करो, कोई इशू नहीं है. बताइए मुझे V1 is greater than V2 is greater than V3. अच्छा चलो कांस्टेंट कर लेते हैं हम लोग. मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया. यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, लेट्स सपोज कर लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर है. सो अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, सो अब बताइए P बढ़ेगा तो V बढ़ेगा कि घटेगा. P के बढ़ाने पर V बढ़ता है कि घटता है, बताइए बेटा. When you increase the pressure, will the volume increase or decreases? Is my voice is audible? Decreases, sir. Well, it will decreases ना. So we can say that more the value of P, जितना ज्यादा P की वैल्यू होगी ओवरऑल हमारा P अपॉन T की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी क्योंकि हमने T को कांस्टेंट कर दिया. जितना हमारा P होगा उतना मेरा, यानी यहाँ पर P by T की वैल्यू सबसे ज्यादा, यहाँ पर उससे कम उससे कम. तो सबसे कम P by T की वैल्यू यहाँ पर, इसका मतलब सबसे कम प्रेशर यहाँ पर. सबसे कम प्रेशर यहाँ पर है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर होगा. तो वी कैन से दैट V1 is greater than V2 is greater than V3. Okay. Now moving further.
Moving further, we have another law, that is the Avogadro's law. Okay, so Avogadro's law for gases. Gases के लिए Avogadro's क्या कहता है? According to this law, according to this law, इस law के according equal volume of gases under similar conditions okay of temperature, similar मतलब similar conditions है हमारे पास, जैसे कि temperature है and pressure contain क्या इक्वल रखेंगे, क्या कंटेन सिमिलर रखेंगे बताइए? कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स, और अगर मोल सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूल भी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड करता है। हमारे पास मोल इज अ नंबर, तो मॉलिक्यूल भी नंबर ही है तरह से। अगर मैं बोलता हूँ कि ये 1 मोल है तो उसका मतलब हुआ कि इसका मतलब है 6.02 × 10⁻23। अगर ये 2 मोल है तो उसका मतलब है × 2, बात तो एक ही है ना। सो उसमें कोई वो नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हमारे पास सेम टेम्परेचर है और सेम प्रेशर है तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि अगर हमारे पास सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर मैंने दो गैसेस के अगर वॉल्यूम्स इक्वल हैं, यानी इक्वल वॉल्यूम्स हैं, तो उनका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर सेम होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, कि उनके अंदर मास कितना है वो डिपेंड करता है। लेकिन हो सकता है कि एक ज्यादा हो एक कम हो, लेकिन अगर मेरे पास वॉल्यूम यानी वो जगह सेम ले रहे हैं, तो मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर सपोज कीजिए कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, सपोज कीजिए कि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है। ओके, हमारे पास अलग अलग गैसेस है। सो अगर मैंने बोला कि मैंने सब इन सारे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, और सब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, सब 1 एटमॉस्फेरिक यानी 1 ATM पर है। इसका भी 1 ATM प्रेशर है, इसका भी 1 ATM प्रेशर है। सो अगर सबका प्रेशर सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पूछूंगा मैं जब मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको आइडियल गैस इक्वेशन, तो उसमें हम लोग इस लॉ का डिराइव करते हैं, इस लॉ की मदद से हम लोग डेरिवेशन को यूज करते हैं। तो याद रखिएगा अगर वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर सेम है, जब पार्शियल यानी डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो उसमें यहाँ पे यूज किया जाता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम सेम है और सारी गैसेस का प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर मिलाकर के मतलब सारी गैसेस का प्रेशर सेम है, तो उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट आर गोइंग टू बी सेम, वो सेम होंगे। ठीक है, सो याद रखिएगा कि सब में उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड, जितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आएंगे इसमें, उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे और उतने ही हमारे पास नाइट्रोजन के आएंगे। अब ये तो पता है कि वेट अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ कि 6.022 × 10⁻23 है, सपोज कीजिए मैंने लिया है, सपोज कीजिए, और इसकी भी 6.02 × 10⁻23 है, इसकी भी 6.02 × 10⁻23 है, तो उसका मतलब है कि इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल आए, लेकिन वेट अलग अलग हो जाएगा। इसमें 44 ग्राम आएगा, इसमें 2 ग्राम्स आएगा, इसमें हमारे पास 28 ग्राम आएगा, तो वेट अलग हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। समझ आया बेटा? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, या डाउट है तो पूछ लो दोबारा से। No, sir. पक्का? कॉपीड? Pakka. ओके, सो अभी हम लोग कंबाइनिंग करके, अगर हम लोग तीनों लॉ को कंबाइन करें, कंबाइनिंग ऑल द लॉज, ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एक और इम्पोर्टेंटली यहाँ पे कि वॉल्यूम जो हमारे पास होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये हमें कौन बताता है? ये हमें एवोगैड्रोस लॉ बताता है। समझ में आया कि वॉल्यूम जो होता है गैस का वो कांस्टेंट होता है। ओके, मतलब वॉल्यूम ऑफ, अगर हम लोग प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी आप उसमें इसको इक्वेट कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग फर्दर कि अगर हम लोगों ने तीनों लॉज को कंबाइन कर दिया तो हम लोग कह सकते हैं, वो तो हम उससे एक आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन,
आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ऑन कंबाइनिंग गैस लॉस जो भी हमने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, वी गेट आइडियल गैस इक्वेशन according to this equation क्या होता है, वी नो दैट PV is equals to nRT। हमारे पास P जो होता है वो किसके बराबर होता है, nRT के बराबर होता है। वी कैन कंबाइन दिस, PV is equals to nRT। ओके, हमने कंबाइन करके ये सब बनाई इक्वेशन। इसमें याद रखिएगा हम लोग को प्रेशर जो लेना होता है वो ATM में लेना होगा। वॉल्यूम शुड बी टेकन इन लीटर। ओके, n is the number of moles, I is the gas constant that you have to take the gas constant, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.0821। ये वाली वैल्यू लेनी है, इसकी दो वैल्यूज होती हैं, अभी मैं एक और डिस्कस करूंगा। एंड टेम्परेचर शुड बी टेकन इन केल्विन। गॉट इट। तो हम लोग को लेना होगा, हमारे पास हम लोग एनर्जी में पढ़ेंगे अभी, जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में आर की जो वैल्यू यानी एनर्जी की टर्म में हम लोग आर की जो वैल्यू लेते हैं, दैट इज आर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है दैट इज 8.314 हम लोग लेते हैं, 8.314 हम लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये वैल्यूज नहीं लेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि हम लोग को जब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन करते हैं तो उसमें हमें प्रेशर का यूनिट, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो प्रेशर का यूनिट आपको पता होना चाहिए। प्रेशर यूनिट हम लोग को एटीएम में लेना है। बाकी सब तो पता है कि लीटर में होता है, ये टेम्परेचर केल्विन में होता है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड आर द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, जिसकी वैल्यू हम लोग कितनी लेते हैं 0.0। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल gas constant and its value is actually 0.0821 liter ATM per Kelvin per mole। ओके, इसकी यूनिट हमें ये मिल जाएगी। गॉट इट, समझ आया बेटा, समझ आया? यस सर। ओके, और ओके ठीक है, अगर ये तो हमारे पास ये तो हमें जो लेना होता है ये आर, ये हमें लेना होता है फॉर किसके लिए, जब आर को हम लोग फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन नॉलेज के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि आर की एक और वैल्यू होती है जब हम लोग एनर्जी वाला लॉ को यूज करते हैं, जब एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, तो हम लोग आर की जो वैल्यू यूज करते हैं वो भी उसी में भी यही वैल्यू होती है, लेकिन बस आर इज इक्वल टू 3.14 हम लोग यूज करते हैं जूल पर केल्विन पर मोल, हम लोग ये यूज करते हैं जूल पर केल्विन पर मोल, और इट इज आल्सो इक्वल्स टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। गॉट इट, कॉपी किया? यस सर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल्स टू n को हम लोग देख सकते हैं W/m RT। भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन MB अपॉन WB अपॉन MB, ये तो पढ़ेगी आपने। तो W इज द गिवन वेट, लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से बेटा, लिख सकते यस हैं सर। है ना। तो अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास आ गया। तो मैं अगर मैं बेटा इसको P को नीचे ले जाता हूँ, V को नीचे ले जाता हूँ, और मैं लिखता हूँ इस तरह से कि W/V और ये इंटू M आ जाए हमारे पास, ओके। अगर हमारे पास ये M आ जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास R इंटू टी होगा। एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस वन, व्हाट इज गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है बताइए बेटा, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा? डेंसिटी होता है ना। जोहा जोहा मेरी आवाज आ रही है? हेलो जोहा बेटा, इज एम ऑडिबल? आपने माइक ही म्यूट कर रखा है। इज एम ऑडिबल?
Hello, sir. Can you hear me, sir? Yeah, beta, why not? So, is I'm audible to you? Yes, sir. So, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि W by V को what we can write? तो W by V can be written as density. Yes, sir. So, इस इक्वेशन को हम लोग ले सकते हैं dRT upon M. M is the molar mass. Molar mass of the gas. ओके ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो उसको पहले मैं ड्राइव करा देता हूँ, पहले सब कुछ पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम लोग जंप करेंगे फौरन से ना. ओके सो ये Yes, समझ आया आपको? कोई डाउट तो yes, नहीं sir. है इसमें? No, sir. ओके सो लेट्स मूव फर्दर. सो अभी हम लोग आगे चलते हैं और ये कॉपी कीजिए, ये इसको कॉपी कीजिए. Okay, sir. ये हमारे पास लॉज है. Done, sir. ओके सो अभी मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे पास R और T कांस्टेंट है, we know that this is constant. So if I bring this W1 to नीचे और M को ऊपर मैं ले जाता हूँ, तो I can write it for a physical condition. We can write it P1 V1 upon we can write this one like this way, that P V upon or into M, okay, upon W, okay, and into T1, okay. So this is equals to R, and this is constant. This is not going to change. Okay, this is constant. So if I take this equation कि हमारे पास हमने किसी चीज को भी चेंज किया, तो मतलब हमारे पास ना कुछ चीज अपने आप चेंज करेगी. सपोज कीजिए कि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और आपके पास m जो है वो मोलर मास है, जो भी m इज द मोलर मास, वो भी कांस्टेंट रहता है ज्यादा किसी भी गैस के लिए. ठीक है, तो कभी m पूछ सकता है आपसे, मतलब इस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ कि P1 V1 अपॉन M1 इज इक्वल्स टू this is W1 into T1 is equals to P2 V2 upon M2 upon W2 upon T1, sorry T2. So अभी हम लोग को कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है कि अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को और सपोज करो इसको कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है हमारा, तो प्रेशर चेंज करोगे तो बताइए आपका गैस कितना चेंज आएगा, यानी कि गैस में कितना चेंज आएगा. अगर M1 M2 भी हमारे पास फिक्स हो जाए, सपोज करो कोई पर्टिकुलर गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने बोला कि हमारे पास पर्टिकुलर गैस है, तो उसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी, पर्टिकुलर गैस में मोलर मास फिक्स हो जाएगा, तो ये कट जाएगा. उसके बाद हमारे पास इफ इट इज सेइंग कि हमारे ने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सो ये टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो उसके बाद उसने बोला कि वॉल्यूम भी हमारा कंटेनर का फिक्स है कि इस कंटेनर के अंदर ही रिएक्शन हो रही है. सो बताइए कि तो कितना प्रेशर चेंज होगा, आपने प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज किया तो कितना कितना गैस जो है वो एक्सपेंड करेगी, या कभी कई बार ऐसा पूछ लेगा कितनी गैस निकल जाएगी कंटेनर में या कितनी गैस ऐड हो जाएगी, तो कई बार हम लोग को इस तरह से भी पूछ लेता है. तो यहाँ पर हमारे पास है W1 जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था या वेट था गैस का, तो यहाँ पर हम लोग देंगे वेट ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर के अंदर जो गैस है उसको, ठीक है, एट P1 V1 एंड T1. ओके, एंड हियर W2 क्या है हमारे पास, W2 इज द वेट ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर at P2 V2 and T2 बेटा, कि P2 V2 और T2 पर हमारे पास किस तरह से गैसेस हमारे पास चेंज होगी. तो कई बार हम लोगों ने चेंज कर दी कंडीशन, तो कुछ ऐसा होता है ना, ये कई बार बस्ट कर जाता है, कई बार लीकेज आ जाती है, कई बार तो वॉल्यूम मतलब हम बोलेंगे कि कितनी गैस एस्केप कर सकती है, कितनी गैस ऐड हो सकती है, तो कई बार गैस जो है वो एस्केप कर जाती है. एस्केप क्यों करती है, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम उतना है, उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, तो कई बार गैस उसमें से एस्केप हो जाती है. तो कई बार एस्केप अमाउंट में भी हमसे क्वेश्चन आ जाता है. तो एस्केप अमाउंट अगर मैं बोलूं, एस्केप अमाउंट हमारे पास जो आएगी इसमें, दैट वुड बी एस्केप अमाउंट वुड बी इक्वलेंट टू W1 माइनस W2, और परसेंटेज ऑफ एस्केप अमाउंट आए तो एस्केप अमाउंट इन परसेंटेज वुड बी इक्वल्स टू W1 माइनस W2. ओके,
upon W1 into 100. This will be the percentage of the escape amount. Got it? तो इस तरह से हमारे पास ये आता है. Got it? Yes, sir. एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं और फिर छुट्टी करते हैं ना. न्यूमेरिकल करें बेटा. Sure, sir. You copied this one? 1 minute, sir. Done, sir. Okay, so let's move further. So moving further, we have this one that these are the numerical problems. Numerical on ideal gas equation. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हम लोग मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ऐसे ओके हमारे पास एक ऐसे कोई कंटेनर है. ओके ओके और उस कंटेनर में हमारे पास एक गैस रखी हुई है. ओके सो हमारे पास एक कंटेनर में गैस है. मान लेते हैं कि हमारे पास P1 है और P1 हमारा जो इस कंटेनर के अंदर जो गैस है वो मान लेते हैं कि वो 2 atm प्रेशर है. 2 atm प्रेशर है हमारे पास. और यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप वो लगा रखा है. ठीक है. और यहाँ पर जो वॉल्यूम है हमारा वो 3 लीटर है. और यहाँ पर हमारे पास P2 है, उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 4 atm. प्रेशर P2 है इस वाली गैस का और वॉल्यूम हमारा जो है दैट इज V2 इज 2 लीटर. अगर हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, अगर स्टॉप कॉक को अगर हमने रिमूव कर दिया तो हम बोलेंगे इफ द स्टॉप कॉक is removed, then what will be the final pressure of the gases, of the combined gases. तो हमारे पास एक गैस है P1, मतलब हमारे पास एक गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है और मतलब वो 3 लीटर है. और हमारे पास P1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें 2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. और एक हमारे पास P2 है, उसमें 4 atm प्रेशर है. और दूसरी गैस में और V2 हमारे पास जो है वो 2 लीटर है. तो बताइए बेटा, अगर हम लोग स्टॉप को रिमूव कर दिया और हम लोग एज्यूम मान रहे हैं कि इसका वॉल्यूम हम लोग नेजेबल मान सकते हैं, मतलब इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं. तो कनेक्टिंग रॉड का जो है कोई वॉल्यूम नहीं है, नेग्लिजिबल है. तो उस कंडीशन पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? हम लोग कैसे करेंगे? देखो, हम लोग को पता है कि P1 V1 हमने मान रखा है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग. तो वी नो दैट PV is equals to nRT. R is constant, temperature is constant, and number of moles is also constant because it is not escaping. The gas is not escaping. Okay. Yes, sir. Okay. But यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है. सो हम लोग बोल रहे हैं कि ये इंक्रीज नहीं होगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? वी विल ऐड दिस वन P1 V1 ओके प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू PV होगा हमारे पास. जरा मुझे बताइए, क्या ऐसे करेंगे हम लोग? यस, वी विल डू लाइक दिस. हम लोग ऐसे ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे पास, क्योंकि nRT की जो भी वैल्यू आएगी और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको करना होगा. हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अगर आप सोचे कि हमारे पास 2 atm प्रेशर है और ये 4 atm प्रेशर है, दोनों का मिलकर के 6 हो जाएगा. नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी. वॉल्यूम यहाँ पर 3 है, मतलब 2 के साथ यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 के साथ सिर्फ 2 है. तो ये प्रोपोर्शनेट में नहीं है एकदम, दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट. सो व्हाट वी डू हियर दैट वी विल मल्टीप्लाई दिस टू 2 into 3 plus 4 into 2 will gives you
PV, P you need to calculate the final pressure of the gas, एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए 2 लीटर है और ये 5 लीटर है, सॉरी 3 लीटर से दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 5। तो वॉल्यूम तो हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम एडेबल क्वांटिटी है, उसको आप जगह के हिसाब से वो चेंज नहीं होती, मतलब जितनी जगह है वो उतनी ही रहेगी ना, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। सो जितना कंटेनर का वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा, वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता। तो वॉल्यूम तो सेम है, दैट इज 2 + 3 5 हो जाएगा। लेकिन प्रेशर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि प्रेशर जो होगा वो 2 + 4 करके 6 कर दे, नो वी कैन नॉट डू दिस लाइक दिस। ओके, सो व्हाट वुड बी आवर आंसर, क्या आंसर आएगा हमारा, दैट वुड बी 6 + 8 = 5p, so you will get 14 upon 5 = p, and that will be equals to 2.5 atm. 2.5 atm pressure आया हमारा, so 2.8 atm pressure. Got it? Yes, sir. So आज के लिए इतना ही रखें, और the class is up to 7:30. Yes, sir. It is up to 7:30 na? Yes, sir. Okay, so let's move to the next question. Sure, sir. So we have here, the next question is, that is अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर हम लोग मान लेते हैं, और इस कंटेनर के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है, प्रेशर मान लेते हैं, तो प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर या इसके अंदर जो भी गैस है वो हमारे पास, लेट्स सपोज करो वी हैव द ड्राई यानी सूखी N2 ड्राई N2 इसके अंदर है, और उसका जो प्रेशर है दैट इज 60 mmHg। तो ड्राई N2 का जो प्रेशर है N2 हमारे पास जो है उसका प्रेशर है 60, कंटेनर के अंदर लिखना जरूरी है क्या, तो उसके अंदर एक N2 गैसेस है हमारे पास। ओके, सो उसका जो प्रेशर है हमारे पास दैट इज 60 mmHg या 600 मान लेते हैं, 600 mmHg मान लेते हैं। ओके, और इसके अंदर सपोज करो कुछ मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, वाटर के कंटेंट प्रेजेंट है, दैट इज द मॉइस्चर। सो हम लोग बोलेंगे कि द प्रेशर ड्यू टू चलो मान लेते हैं कि हमारे पास इसमें जो प्रेशर है ड्यू टू वाटर H2O वो मान लेते हैं दैट इज 100 का जो वाटर मॉइस्चर इज P due to N2 is this one, and P due to moisture is 100 mmHg. So अगर आप इसको, what would be the new pressure if you change, this is the volume of the container is 2 liter. So what would be the pressure at constant temperature when its volume changes to 1 liter। यानी आपने इसको एक ऐसे बॉक्स में ट्रांसफर कर दिया जिसकी वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। तो आप बताइए मुझे नया प्रेशर कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन समझ में आया बेटा जोहा? Sir, can you explain the question again? ओके, व्हाई नॉट। मैंने बोला है कि आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर 2 गैसेस हैं, एक मॉइस्चर और दूसरा तुम्हारे पास क्या है, ड्राई N2 नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की वजह से जो प्रेशर है वो हमारे पास कितना है, 100 है, 600 mmHg है, और हमारे पास वाटर की वजह से जो है वो हमारे पास 100 mmHg है। और अगर हम लोग इसका पी टोटल भी देखते हैं, पी टोटल जो हमारे पास आया है, पी टोटल भी चेक करते हैं, वो हमारे पास आया 700 mmHg, यानी इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर जो है वो 700 mmHg है हमारे पास। तो अगर आप इसको इस कंटेनर में चेंज कर देते हो, यानी इसका वॉल्यूम जो है आप हाफ कर देते हो,
और टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो तो आप के पास प्रेशर कितना आएगा? नया प्रेशर कितना होगा? कुछ तो कोशिश करो बेटा। 300 mm. 300? बेटा वॉल्यूम कम करने पर सेम गैस को तुम डाल रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? अभी आपने सोचो कि इसको कंप्रेस कर दिया, उसकी आधी जगह पे कर दिया, Okay, sir. तो अब प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? In अच्छा, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P2V2। yes, sir. तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा? बोलिए बेटा। अरे जोहा, इतना तो कोशिश करो कि अगर आपने यहाँ पर, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर वैल्यू को पुट किया है कुछ भी, ओके, इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू, सपोज कीजिए कि आपने प्रेशर यहाँ पर 700 है, वॉल्यूम आपका 2 है, और P2 आपकी वैल्यू है, P2 आपको निकालना है, तो V2 आपका 1 है, तो कितना आएगा P2? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। बताइए बेटा। क्लास में हो? जोहा। Hello, sir. हाँ बेटा, इज आई ऑडिबल? Yes, sir. सो अब बताइए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? आप ये लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप इस चीज को लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपके Yes, पास sir. ये है, तो यू विल गेट P2 इज इक्वल टू 1400। Yes, sir. बट ये रॉन्ग हो जाएगा। Okay. क्यों? ओके। ये क्यों गलत हो जाएगा बेटा? ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ना मॉइस्चर को लिया गया है, और मॉइस्चर का प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज करने पर नहीं पड़ता, क्योंकि वाटर इज नॉट एन एक्सपेंस, मतलब वो वाटर जो होता है ना, उसकी ड्रॉप होती है बहुत छोटी छोटी मॉइस्चर, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहता है, इट इज मैनी माइन्यूट। तो अगर आप उसको किसी छोटे कंटेनर में ले जाओगे तो उसका प्रेशर, मतलब वो उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट ही रहता है, इट डज नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम। वो चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वाटर जो है वो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की तरह माना जाता है, ना ही तो वो एक्सपेंड करता है, ना ही वो क्या करता है, ठीक है, ना ही वो एक्सपेंड करता है, ना ही वो हम बोलेंगे कि वो कंप्रेस करता है। तो आप उसको नीचे ले जाओगे तो कंप्रेस नहीं करेगा,
मतलब अगर उसका वॉल्यूम कम कर दोगे तो कंप्रेस नहीं करेगा। सो इस कंडीशन में हम बोलेंगे द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल रिमेन सेम, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिक्रीज और इंक्रीज द वॉल्यूम, तो वो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि हम बोलते हैं प्रेशर जो होता है ना, इसको हम लोग एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। कहीं जगह पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिस विल बी गिवन टू यू दैट द एक्वस टेंशन, यानी एक्वस टेंशन जो है यानी पानी में पानी की जो प्रेशर है वो इतना है, एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक पॉइंट, द प्रेशर ऑफ मॉइस्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस टेंशन, aqueous tension do not depend on the volume of the do not depend on the volume पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऑन चेंजिंग दी हम लोग बोलेंगे कि ऑन चेंजिंग चेंज करने पर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर प्रेशर ऑफ द वाटर जो भी है या मॉइस्चर रिमेन सेम, ये सेम ही रहेगा। तो हमारे पास किसका प्रेशर चेंज होगा बेटा? N2 का, सिर्फ N2 का प्रेशर चेंज होगा। तो हमारे पास हम लोग लिखेंगे 600 mmHg वाज द प्रेशर ऑफ ड्राई N2 का था, वो कितने पर था? 2 लीटर पर था। अब हम लोग का P2 निकालना है और वॉल्यूम हमारे पास है 1 लीटर, वॉल्यूम इज 1 लीटर। सो वी कैन से दैट P2 इज ऑफ N2, यानी N2 का जो P2 आएगा हमारे पास, यानी प्रेशर आएगा, दैट वुड बी 1200 mmHg, दैट वुड बी 1200 mmHg होगा। और इसमें वाटर भी है, अब वाटर का तो चेंज नहीं हुआ, सो द टोटल प्रेशर in total pressure of N2 and moisture will be 1200 प्लस 100 वाटर का था, दोनों को मिलाकर के दैट वुड बी 1300 mmHg, 1300 mmHg यहाँ लिख देता है, 1300 mmHg at volume 1 liter। समझ में आया? Sir, I got this answer, but I thought it was wrong. हाँ, क्यों सोचा बेटा ऐसा? क्यों सोचा? Confusion हो गया था sir. तो समझ में आया? Yes sir. नाउ मूव करें आगे अगले क्वेश्चन पर। Yes sir. ओके, नाउ हमारे पास एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि एन ओपन वेसल्स। अब जैसे ही मैंने ओपन वेसल बोला, क्या दिमाग में आएगा? खुला हुआ है। Yes sir. खुला हुआ वेसल के अंदर क्या क्या चीज कांस्टेंट होती है? कि उसका प्रेशर जो होगा खुले हुए प्रेशर का, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। आप उसका प्रेशर बढ़ा नहीं सकते कितना भी Yes आप sir. ओपन कर ले, क्योंकि वो सब एटमॉस्फेयर में चला जाएगा जो भी आप बढ़ाएंगे। और क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल रिमेन कांस्टेंट। क्या चीज कांस्टेंट रहेगा बेटा? Volume. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल रिमेन कांस्टेंट। ये जो वॉल्यूम है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा जो वॉल्यूम है, जितनी भी इसकी कैपेसिटी है, वो कांस्टेंट रहेगी। सो मैं बोल रहा हूँ एन ओपन वेसल at 27 degrees Celsius is heated till, जब तक उसको हीट किया गया, till its 3/5 of air is expelled out, यानी बाहर निकल गई। ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड द टेम्परेचर, आप वो टेम्परेचर बताइए, ठीक है, at which the gas air was heated। किस टेम्परेचर पर इसको आपने
हीट किया, ठीक है। Yes, sir. एज्यूम करेंगे दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कांस्टेंट, एयर इज कांस्टेंट। और एज्यूम क्या करना, मतलब हो गई, कंटेनर की बात चल रही है तो कंटेनर में वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा क्योंकि कंटेनर तो ओपन है। सो उसके अंदर जितनी गैस होगी हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कोई आइडिया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। Sir, PV is equals to nRT. PV is equals to nRT। यस, ट्राई करते हैं हम लोग क्या उसी से होगा या कोई और सी इक्वेशन से हमें करने को मिलेगा। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि इसमें से जो गैस निकल गई है वो 3/5 निकल गई, तो बची कितनी इसमें, बची कितनी 2/5। Yes. 2/5 इसमें बची है ना। 2/5 किसकी बची, अपने वॉल्यूम की या फिर अपने मास की, बताइए। 2/5 अपने वॉल्यूम की बचेगी कि अपने मास की। एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, गैसेस ऑक्यूपाई द कंटेनर कंप्लीटली ना, Yes, sir. है ना। बेटा वॉल्यूम वहां पर चेंज होता है जहां पर सॉलिड या लिक्विड की बात चल रही है, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में तो आप उसको 2/3 या 1/3 1/5 भी कर देंगे ना, तब भी वो पूरे कंटेनर फुल करेगी हमेशा। मींस इट इज गोइंग टू फुल इट्स ऑल कंटेनर, वो अपना कंटेनर पूरा का पूरा ही फुल करेगी। तो इसका मतलब है, और मैंने आपको शुरू में ही पहले दिन जिस दिन क्लास हुई थी तो उस दिन मैंने बताया था कि गैसेस के केस में whatever the volume of the container is, we will assume that the volume of the container is equal to the volume of the gas taken in the जो भी गैस का वॉल्यूम है वो मानते हैं हम लोग ना, कंटेनर का वॉल्यूम। Yes, sir. अब आप बोलोगे सर ये तो ओपन कंटेनर है तो उसका तो वॉल्यूम इनफाइनाइट होना चाहिए। नहीं बेटा, हम लोग इसी कंटेनर की बात कर रहे हैं, चाहे भले ही ओपन है लेकिन इसके डायमेंशन तो है ना, इतना ही वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जिस कंटेनर के अंदर है। तो इसके अंदर हम लोग मान रहे हैं कि इसके अंदर 2/5 गैस बची हुई है, ठीक है, 3/5 उड़ गई है। सो वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम इज फिक्स, वॉल्यूम कम नहीं हुआ तो फिर क्या चीज कम हुआ है, द अमाउंट ऑफ द गैस। क्या चीज कम हुआ बेटा, Amount of gas. अमाउंट ऑफ गैस। अच्छा, अमाउंट ऑफ गैस का मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी उसी के एस्पेक्ट में चेंज होंगे। बिकॉज अगर मैंने बोला कि W चेंज हुआ है, W/M, तो अगर मेरा M फिक्स है, जो भी गैस है या जो भी कुछ है यहाँ पर, तो उसका क्या चीज चेंज हुआ होगा, इट वुड बी इट्स, क्या चीज चेंज हुआ होगा बेटा, इट वुड बी इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो मैं मान Yes. लेता हूँ कि PV इज इक्वल्स टू nRT, ये मैं आइडियल गैस इक्वेशन को मान लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेयर द वॉल्यूम, आप नोट भी कर रहे हो ना सब, Yes, sir. of vessel is constant and also the pressure is constant। क्यों है constant, due to open कंटेनर की वजह से, बिकॉज ओपन कंटेनर की वजह से प्रेशर कांस्टेंट होगा। सो हम लिख सकते हैं कि PV is equals to nRT, ठीक है। तो वी कैन राइट PV is equals to nR, so P and V is constant, pressure and volume is constant for both the cases, so what is changing, N1 and T1 is changing, ये तो चेंज होगा, R भी कांस्टेंट है कि नहीं, बताइए ना बेटा, है कि नहीं है, R इज कांस्टेंट ना, R तो कभी चेंज नहीं Yes, होता, sir. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। Yes, sir. तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, जब गैस हमने पूरी की पूरी ली उसके अंदर। फिर हमने PV लिया और फिर हमने किया N2, नंबर ऑफ मोल्स, R T1 T2, टेम्परेचर T2 कर दिया हमने। अब आपको पता है कि 1 और 2 आपस में इक्वल होगा क्योंकि P और V कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, सो वी कैन राइट 1 इज इक्वल्स टू 2। व्हाई, बिकॉज हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों आपस में कांस्टेंट है, तो यू कैन राइट हियर N1 R1 T1 is equals to N2 R2 and T2, R is cancelled, so we can write N1 upon T1 is equals to N2 upon T2। got it? Yes, sir. ओके, अब हमने मान लिया कि हमारे पास जो इनिशियल मोल थे गैस के वो कितने थे, x मोल थे।
x मोल थे, जो भी गैस का मोल था वो नंबर ऑफ मोल्स इज x मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल हमारे पास x थे, टेम्परेचर हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस का क्या बनेगा 300 केल्विन। Yes, sir. 300 केल्विन इज इक्वल्स टू, यहां पर बताइए अगर हमने टू हमारे पास 3/5 उड़ गया तो कितना बचा 2/5 मोल बचे। Yes, sir. 2/5 of x is equals to T2. Okay, so x will get also cancelled. We can write 1. We can write here T2 is equals to 2 by 5 into 300. T2 is equals to 2 by 5 into 300. No, 5 by 2 होगा ना, ये तो गलत कर दिया। 3 by 5 5 by 4 था हमारे पास ना। एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स ही तो चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर अगर मैं बोलूँ तो आज से भी मिस्टेक किया मैंने। छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने गड़बड़ क्या करी है, n1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू n2। ओ मैंने यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ कर दी। आई हैव रिटन n1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन t2, और मैंने n1 मेरे पास थे x मोल्स अपॉन t1 क्यों किया मैंने, अपॉन t1 क्यों किया, यहाँ पे t2 आएगा बेटा, यहाँ से ये t आएगा और यहाँ से ये नीचे जाएगा t1, तो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस वे, अ सिली मिस्टेक छोटी सी, सो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस वे, दिस इज T2, क्योंकि n1 के साथ जब नीचे आएगा तो T2 आएगा और n2 के साथ जब आएगा तो यहाँ पर T1 आएगा, तो वी कैन राइट हियर x अपॉन T2 हम लोग को निकालना है, n2 हमारे पास है 2 by 5 x हमारे पास बचे हैं, अपॉन T1 इज 300 केल्विन, सो x इज कैंसल्ड आउट, यू कैन राइट हियर दैट T2 यानी T2 उस तरफ जाएगा और 300 इस तरफ जाएगा, और तो वी कैन राइट इट T2 और यू कैन राइट इट लाइक दिस वे, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, मतलब रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ऐसे रेसिप्रोकल कर देता हूँ। सो व्हेन यू रेसिप्रोकल दिस वन you will find that 300 is being divided by 2 by 5। यहाँ समझ आया, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इसका मतलब है 300 is being divided by 2 by 5। Yes, sir. तो ये T2 is equals to 300 into 5 by 2, Yes. it will be 150, 7. so T2 would be 750 Kelvin। अब इसको आप अगर उसमें करना चाहते हो, उसमें सेल्सियस में दे रखा है तो आप इसको सेल्सियस में ही लिख दीजिए 273 माइनस करके, so when you minus this one T2 is equals to